Supreme Lord and the eternal truth, let us obey Thee alone and live according to the truth. ଆଜିର ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାର ବୁଧବାରର ଏହି ପାଠଚକ୍ର ଯାହା ଆମେ ମା ବହି ଉପରେ କରିଆସୁଛେ ଏବଂ ସନଲିଟ୍ ପାଥ ଆଇଡିରେ ଦୀର୍ଘ 14 ମାସ ହେଇଗଲା ଧରି ଚାଲିଛି। ଆମର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଚାଲିଛି ଯାହା ଅର୍ଥ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବହୁତ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆମେ ଶୁଣି ସାରିଛେ। ରାଧାକାନ୍ତ ଭାଇ ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟର ଯୋଉ 8ଟି ମାତ୍ର ଛୋଟ ଛୋଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ଅଛି ତାର 5ଟି ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ସାରିଛନ୍ତି ଭାଇ ଏବଂ ଆଉ 3ଟି ଯୋଉ ବାକି ଅଛି ଆଜି 6ଠ ପାରାଗ୍ରାଫଟି ଆରମ୍ଭ ହବ। ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ମାନେ ଖୁସିର ସହ ସେଇ କଥାଟିକୁ ରିପିଟ୍ କରୁଛି। ଆରଥରକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କହିଥିଲି, ପାରାଗ୍ରାଫ ତ ବହୁତ ଛୋଟ, ତେଣୁ ଆରଥରଟି 13ତମ 13th ଅଧିବେଶନ ଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ସେଇ 13ଟି ଖଣ୍ଡେ ବାକ୍ୟ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ପାରାଟି ଛୋଟିଆ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯୋଡ଼ିଏ ବାକ୍ୟର କଥା। ସେତିକିରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ ଆମର ଯାଉଛି। ଆମେ ବହୁତ ରେଫରେନ୍ସ ମାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ନେଇକରି ଅଧ୍ୟୟନ କରିଚାଲିଛେ, ତେଣୁ ବହୁତ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆମକୁ ଇଏ ଉପକୃତ କରୁଛି। ଏବଂ ଆଜି ଏଇ 14ତମ ଅଧିବେଶନ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏଇ ଅର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଉପରେ ଏବଂ ଆଜିର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ରହିଛି ଯେ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ପାଇଁ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନସିକତାଟା ଥାଏ, ମାନେ ତାକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଅଛି ଯେ ଅର୍ଥ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆସକ୍ତି ଥାଏ ଆମର, ସେଇଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଥିଲେ କଣ କଣ ହବ ଇତ୍ୟାଦି, ସେଇଟା ନୂଆ କଥା, ମାନେ ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ନୂଆ ଅଧ୍ୟୟନ ହବ। ଏବଂ ଗତ ଥରର ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଥିଲା ଧନ ପାଇଁକା ଧନୀ ପାଖରେ ମସ୍ତକ ନତ ନ କରିବା କଥା ପ୍ରଭୁ ଅତି ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରତିପତ୍ତି ଦେଖି ଲୋକମାନଙ୍କର କେମିତି ବଶୀଭୂତ ହେବା କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣରେ ଲୋକମାନେ ଏମିତିକି ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ, ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଅର୍ଥର ଏକ ପ୍ରକାର ଯେମିତି ଆସକ୍ତି ବା ଦାସ ହେଇଯାନ୍ତି। ଫଳରେ ଅର୍ଥଟା ଯୋଉ ଭାବରେ ଅଧିକ ଭାବରେ ଆସିବ, ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଦେଇପାରିବେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଲାଇନ ହଉଥାଏ, ତିରୁପତିର ଭାଇ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ, ଆହୁରି ବି ଏମିତି ସବୁ ସଂସ୍ଥା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠି ବି ସେ କଥା ହଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତିପତ୍ତି ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନ ନୁଆଁଇବାର କଥା ବହୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ଆରଥର ଆଲୋଚନାରେ ଭାଇ କହିଥିଲେ ଏବଂ ମାଙ୍କର ବହୁତ ଉଦ୍ଧୃତ ଜିନିଷ ସବୁ ଆମକୁ କହିଥିଲେ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଅର୍ଥଟି ଦାନ କଲା ବେଳେ ଆମେ ଯୋଉ ଭାବି ଦଉ ଯେ ମୋର ନିଜର ଏଇଆ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆଉ ଏଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କାମଟି କୋଉ ପ୍ରକାରର କାମ ମତେ ମଗା ଯାଉଛି, ଆମର ତ ଗୋଟେ ଭାରି ଚମତ୍କାର ମନ ଅଛି ନା, ସେ ସବୁ ବିଚାର କରିଦିଏ, ତଉଲି ଦିଏ ସବୁ। ତେଣୁ କାମଟି କେମିତି, କୋଉ ପ୍ରକାରର କାମ, ଦାନ ଯୋଉଠି ଆମେ ଦବା ଏବଂ ମୋର ସେଠି ମୋ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଟା କଣ ସମାଜରେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ 5,000 10,000 2,000 1000 ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ନିରୂପଣ କରିଦଉ। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ଚମତ୍କାର କଥା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ଯୋଉ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ବି ଅର୍ଥ ସମ୍ପର୍କୀୟ କଥାରେ ବି ଅଛି, ଗୋଟେ ଆନୁପାତିକ ହବା ଦରକାର। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିପିଟ୍ କରିଦଉଛି ଯେ ଦାନଟି ନିଜର ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ଅନୁସାରେ ଆନୁପାତିକ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦଉଛି, କାର୍ଯ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାପରେ ମୋ ନିଜର
ଅବସ୍ଥାଟା କଣ, ମୋର ଅର୍ଥ କେତେ ଭାବରେ ସଞ୍ଚିତ ହେଇ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କେତିକି ଦବା କଥା, ସେଇ କଥାଟିକୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଆମେ ବିଚାରକୁ ନ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେରିଓଟାଇପ୍ ହିସାବ ଅନୁସାରେ ନିଜର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ କାମଟି ଯାହା ସେଇଆ ଦେଖିକିରି ଆମେ ଗୋଟେ ମେକାନିକାଲି ଦେଇଦଉ। ମା କେଡେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଧନ ମାଗୁଛ ସେଠି ବିଫଳ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି, କାରଣ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କେବଳ ଧନକୁ ଚିହ୍ନିଥାଏ। କଥାଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ମତେ। ଆଉ ସେ ତା ଛଡା କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇପାରେନି। ତାପରେ ଅରଭିଲର ଉଦାହରଣ କହିଥିଲେ ଭାଇ, ମାଙ୍କର କଥାରୁ ହିଁ କହିଥିଲେ। ମା ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ତମେ ଅର୍ଥ ପଛରେ ଗୋଡେଇବ ସେତିକି ତମକୁ କମ ଅର୍ଥ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ତମେ ଅର୍ଥ ମାଗୁଛ ସେଇ ପର୍ପସଟା, ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା, ତାର ସତ୍ୟ, ତାର ତତ୍ତ୍ୱ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝେଇ ପାରିବା ତେବେ ହୁଏତ ଅର୍ଥ ଆପେ ଆପେ ଆସିଯିବ। ସେ ଆଦର୍ଶଟି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବାର ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ମା କହିଥିଲେ ଯେ ଅରଭିଲ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦାନ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିବେ ସେତେବେଳେ ଅର୍ଥ ଆପେ ଆପେ ଆସିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବରେ ଦାନ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ସତରେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ କମ୍। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ କମ୍ ଗୋଷ୍ଠୀରେ କେମିତି ନ ଯିବା ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ଇଚ୍ଛା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା ଦରକାର। ଆଜି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ସବୁ ଆସିବ ଯେ କେମିତି ଭାବରେ ଅର୍ଥ ବାସନା ରୁ ଫ୍ରି ରହିଲେ କଣ କଣ ସବୁ ହୁଏ, ତାକୁ ଭାଇ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ନେବେ। ପାଠଚକ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମତଃ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଏବଂ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତାର ପ୍ରଣାମ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଠଚକ୍ରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ରାଧାକାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆଜିର ଏହି ପାଠଚକ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ, ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛି। ରାଧାକାନ୍ତ ଭାଇ। वंदे मातरम। मीरा मीराम्बिकेति वाक् सुधायते हृदन्तरे, शिरस्तु पादपीठिकां बिभर्तु सन्ततं परे, शरीरतो गिराहुदा न तो हम्बिकां मुदा, भजेतरां परात्परां त्रिलोकमातरं मीराम्। नमो मात्रे जगन्मात्रे भगवत्यै नमो नमः, महाशक्त्यै महाव्यक्त्यै महामूर्त्यै नमो नमः। नमः श्री अरविन्दाय नमो भगवते नमः, योगयोगी योगेन्द्राय त्रिलोकगुरवे नमः। नमामि श्रीमत् मीरा अरविंदो। आज विलंबित संध्यारे पाठचक्र कार्यक्रम रे श्रद्धा और आंतरिकतार सहित उपस्थित थिबा सम्मानस्पद समस्त भाई अपा, गोटे कथा अछि, नम्रन्ति गुणिनो जना, नम्रन्ति फलिनो वृक्ष, नम्रन्ति गुणिनो जना। सम्मानस्पद सरोजिनी अपा बयस तो निश्चित भाव में बड़, ज्ञान रे भी बड़, किंतु गुण चिन्ह गुणिया ये मर्म को देखिए, सी किछि
मां प्रति जो श्रद्धांतरिकता आमर अच्छी से ठोरी पार्टी एवं सम्मान जन तो ठीक नमस्कार भी करुँच आमे पर्यायक्रमे माँ बही आलोचना कर अध्ययन कर जब आरंभ होता से दिन ठूँ कही पुस्तिकाटीर काया बा कलेवर क्षुद्र A4 साइज जदि ताको प्रिंट करा जाए ताहले हुए तो 16 पृष्ठ है किंतु यार तत्व एवं साधनागत दृष्टिकोण यार महत्व यथेष्ट अधिक पूर्ण जोगर साधना रे व्यक्तिर जो भली मनोभाव रहिबा उचित से सब कथा ये जोड़ी दि जाए गत अधिवेशन उपक्रम कहते अपा जे माँ बही चतुर्थ अध्याय एवं किसी मात्रा रे पंचम अध्याय हुए तो आमको टिके केमती टिके खाप न खाइला भली लगी पारे किंतु प्रकृति सेमिति नुह पूर्ण जोगर साधना पूर्ण जोगी बोली आमे जहाँ को कहवा सी तो जीवन को छाड़ी करी जाऊ नहीं जीवन सहित जोड़ी जोग एवं जो ठारे जीवन अच्छी जीवन बंची रहिबा पई आनुषंगिक द्रव्यादिर आवश्यकता रही खाद्य वस्त्र वास एगुड़िकर क्वालिटी कौन है से कथा बड़ कथा नुह को प्रकार क्वालिटेटिव खाद्य खाइबे क्वालिटेटिव वस्त्र पिंधिबे क्वालिटेटिव बासगृह रहिबे आजिकल सब मु बहुत थर मजारे कही आजिकल जो पिला माने आछंती तांकर गोटे अति सुंदर स्वभाव कौन सब जिनस ब्रांडेड हवा दरकार लुगा ब्रांडेड जोता ब्रांडेड सब ब्रांडेड थी दरकार से ब्रांड गुड़ाक कौटू सृष्टि हूँ मुझे कहे ना किंतु कथा है जे जीवन को ब्रांडेड करने प्रयास करा जाऊ नहीं जीवन पाई गोटे मात्र ब्रांड यह हूँ डिवाइन ब्रांड लुगा पाई तो बहुत ब्रांडेड कंपनी अच्छा जोता पाई तो बहुत ब्रांडेड कंपनी अच्छा अन्य द्रव्य पाई बहुत ब्रांडेड कंपनी अच्छा किंतु मो जीवनटा कौ ब्रांड रहा कथा ब्रांड ओडिया मु करि पारु नै मो जीवन रे गोटे ब्रांड रहिबा दरकार गोटे ब्रांड से बहुत कंपनी आ नाही द ओनली ब्रांड फॉर लाइफ इज द डिवाइन ब्रांड तेणु बंचिबा पई अर्थर आवश्यकता रही अर्थ उपार्जन करिबा पई किछि ना किछि वृत्ति अवलंबन करिबार आवश्यकता मध्य रही से कथा में ये अध्याय प्रथम रु आलोचना करी राइट मीन्स ऑफ लिवलीहुड सज्जीविका अर्जन तेणु पूर्ण जोगर साधना रे जीवन अर्थ को बाद दि जाई परिबो नाही एक कथा प्रभु एठारे स्पष्ट भाव में कहते अर्थर मध्य गोटे भूमिका रही अर्थर मध्य एक महत्व रही कारण अर्थ हूँ गोटे शक्ति यही क्रम आम 8टी पाराग्राफ भितर 5टी पाराग्राफ अध्ययन कर सारी आज 6ठ पाराग्राफ 6ठ पाराग्राफ को आम प्रथम पढ़ीदेवे अध्ययन को जीवे इफ यू आर फ्री फ्रॉम द मनी टेंट but without any ascetic withdrawal you will have a greater power to command the money for the divine work. The very first sentence of this paragraph. Equality of mind, absence of demand, and the full dedication of all you possess and receive, and all your power of acquisition to the divine Shakti and her work are the signs of this freedom. Any perturbation of mind, perturbation, to perturb means विचलित हेबा, any perturbation of mind with regard to money and its use, any claim
any grudging is a sure index of some imperfection or bondage. ओडिया अनुवाद एपरि करा जायछि अर्थ आसक्ति रु जदि तुमे मुक्त होई थाओ आउ सन्यासी तुल्य अर्थ को त्याग करि न थाओ सेतेबेले भागवत कर्म निमित्त अर्थजय करिवार अधिक क्षमता तुमे लाभ करिवो। मनर क्षमता कोनोसी दाबी न रखिबा एवं तुमर जहा किछि अछि जहा किछि तुमे पाओ तुमर सकल उपार्जन शक्ति ए सबुकु भगवती शक्ति पाखरे तांको कर्म निमित्त पूर्ण निवेदन करिवा हैला एही मुक्तिर लक्षण। अर्थ एवं अर्थर व्यवहार संबंध रे मनर सामान्य विक्षोभ कोनोसी दाबी कोनोसी कुंठा यदि रही थाए तेबे ताहा तुम मध्यरे कोनोसी ठारे कोनोसी अपूर्णता बा बंधन रहिथिबार अभ्रांत चिन्ह। तीनोटी वाक्य रो गोटिए पैराग्राफ तार तत्व भीतर को आम वर्तमान जीवा। प्रथम कथा है अर्थ आसक्ति रु जदि तुमे मुक्त होई थाओ बा तार कंक्लूजन जो कहउछंती अर्थ जय करिवार अधिक क्षमता तुमे लाभ करिवो। अर्थ उपरे विजय लाभ करिवा पई आमे जदि चाहूछु को प्रसंग रे कथा कहै जाछि नहीं मां का निमंते अर्थ संग्रह करिवा अर्थ आम उपरे हावी होई न जाऊ आम उपरे मालिक भली माड़ी न बसु बरं अर्थटी आम नियंत्रण रे रहू। एटा यदि आमे चाहूथिबे ताहले दुईटी काम करबा पड़े। प्रथम होउची अर्थ आसक्ति रु मुक्त एवं सन्यासी तुल्य अर्थ को त्याग न करवा जोटा किसी समय पूर्व आम आलोचना कले। मेडिएवल जो एसेटिक सन्यासी परंपरा रही सन्यासी परंपरा रे कौन अच्छी नहीं अर्थ को अनर्थर कारण बोली विचार करा जाए। अर्थ हेउची अनर्थर कारण एटा गोटे अति प्रचलित प्रवाद एवं मनुष्यर व्यवहार को जदि आमे देखिबा प्रकृत रे ए प्रवादटीर उत्पत्ति रे बा ए प्रवादटीर उक्ति रे कोनोसी असंगति थिला बळी जणा पडु नाही। अर्थ पई अनेक अनर्थ सृष्टि होई जाउछि। अर्थ आसक्ति मनुष्यर जीवन रे प्रबल मात्रा रे रही अर्थर आसक्ति एवं परिशेष अनर्थ भी सृष्टि होउछि किंतु भ्रुक्षेप नहीं खातिर नहीं। एठारे साधकर मनोभाव केमिति हेबो ना से अर्थ आसक्ति रु मुक्त होइथिबो। आ अर्थ आसक्ति हमें केमिति कहबा कहा किया अर्थ प्रति आसक्त देखिए जो श्रम परंपरा रही कर्म परंपरा कंपनी गुड़ी करे इंडस्ट्री गुड़ी करे दिनक 8 घंटार श्रम आ गोटे कॉन्सेप्ट रोची ओटी बा ओवर टाइम। कहीं भी जने विज्ञ व्यक्ति मनुष्यर शरीर संतुलन को बुझी पारिथिबा जने व्यक्ति
ताको आम निश्चित भाव में गुरुत्व देवा मनुष्यर शारीरिक संरचना जी जानी शरीर कर्मक्षमता को जी जानी भगवान तो जानते दायित्व किंतु एठारे पार्थिव जगत रे मध्य किछि जण जो माने गवेषणा कर जानिले जे गोटे मनुष्य 24 घंटा रु 8 घंटा खंडे श्रम करने समर्थ तेणु मैक्सिमम टाइम दिया गला 8 घंटा से श्रम कर ओभर टाइम जड़े कहीं करुछि ओटी कहीं करुछि ओभर टाइम कहीं करुछि हाँ बेले बेले एमती प्रसंग अच्छी नहीं आवश्यक अच्छी अर्थर कौन नहीं पुओ झीर बाहर करार अच्छी कि आउ कौन गोटे सामग्री किणवार अच्छी कि आउ कौन अच्छी बाहाना आम दे पारू आमको ताहा वास्तवता भली लगी पारे हुए तो किंतु प्रच्छन्न रे जोटा रही अर्थ प्रति एक आसक्ति जदि ओटी करागला ओभर टाइम करागला ताहा शरीर उपरे कुप्रभाव पकेइब नाही कि एवं शरीर उपरे यदि कुप्रभाव पड़िला ताहले ताहा भगवत कार्यर विरोधी हेब नाही कि तेणु अर्थ आसक्ति आउ गोटे सबुठु जोठु अति आम कौन कहे दयनीय कथा जोटा सबु क्षेत्र जोटा रही व्यवसाय क्षेत्र में चाकरी क्षेत्र आज सकाଳେ मु कहूली गोटे पाठचक्र जे जो उपरी कथा जो रही मु मनकर चाकरी करुच्ची मत दरमा दौरान सरकार सेही काम को पुणी लोकंक हितरे करिवा पाई मु लोकंक ठारु लांच नउची जो काम पाई सरकार मते समय देइछंती एतिकी समय ऑफिस रे करिवो तेणु ताहा मोर दायित्व से काम मु करिवि सेथि पई दरमा दउछंती सेही कामटी करिवा पाई बा मो द्वारा करिदबो बोली जतेबेले कोनोसी पब्लिक कोनोसी जनता मो पाखको आसुची ताठु पुणी मु लांच नउची एटा आवश्यकता ना एटा आसक्ति एवं अति सुंदर भाव में पीसी बोली गोटे टर्म अच्छी सरकारी काम गुड़िक पीसी केतेटा डिपार्टमेंट ताको पूरा रिकॉग्नाइज कर दिया जायछि पीसी पर्सनल कमिशन कि आउ कोन हेतिबो ओडिया रे तार फुल टर्म कहि परिबि ने फुल फॉर्म पीसी कोन पर्सनल कमिशन कोन तुम पूरा दरमा दिया गला तमे सेही काम करिवो सेथिरे पुनी पर्सनल कमिशन कोन बा पीसी कोन तो सरकारी कर्म क्षेत्र कर्मचारी क्षेत्र आम देखिए जो लांच नेबार मनोवृत्ति प्राइवेट सेक्टर रे ओवर टाइम रो मनोवृत्ति व्यवसाय क्षेत्र रे ओजन रे किछि ठकिबा किंबा किछि चढ़ा दाम अजणा लोकन ठारू चढ़ा दाम नेबा अपमिश्रण तार पश्चात अछि कोन जणे काहे कि अपमिश्रण करूछि घूरी बुलिक जो आम कनक्लूजन रे पहुंचीबा सिद्धांत रे पहुंचीबा आम देखिबा अर्थ प्रति आसक्ति जुआ खेलुची सट्टा खेलुची कौन पाई ने अर्थ प्रति आसक्ति हाराहारी सबु मनुष्य अर्थ प्रति एक आसक्ति भाव तांकर रही किंतु जे साधक पूर्ण जोगर साधक ताको अर्थर आसक्ति मुक्त होगा पड़ो अर्थर मुक्ति पाई कथा कहूना प्रभु कहूना आम यह भल भाव बुझा तेणु द्वितीय सन्यासी तुल्य अर्थ को त्याग कर अर्थ को संपूर्ण त्याग भी करार नहीं अर्थर आवश्यकता रही किंतु अर्थरे आम आसक्त हो नहीं एक सुंदर दृष्टांत जी दायित्व नेबा कथा नियंती जो माने सन्यासी अवश्य टिके प्रासंगिक हेबो किंतु हठात आसीगला से कथाटी स्मरण को आसीगला मु कहूची जे जो माने प्रकृत सन्यासी जो माने प्रकृत रे भगवत विश्वासी भगवान को निर्भरशील तांका असुविधा हुए नहीं श्री अरविंद सोसाइटी आनुकूल्य प्रकाशित होता गोटे मैगजीन एम ऑल इंडिया मैगजीन बहु पुराना गोटे इश्यू मोर मन पड़ुची एम स्टोरीज बोली गोटे थिला एम स्टोरीज से केतेक गल्प एवं से गल्प गुड़ाक
ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ଥିଲା ବିବେକାନନ୍ଦ, ବଟ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଟ୍ରୁ ଷ୍ଟୋରି, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଟ୍ରୁ ଷ୍ଟୋରି, ଏକ ସତ୍ ଗଳ୍ପ, ସତ୍ କାହାଣୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିବା ଗୋଟିଏ କଥା। କଥାଟି ହେଉଛି ଏମିତି, ମୁଁ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ପାତ୍ର ଏମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ, ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ସ୍ମରଣ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣରୁ ଫେରିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜମିଦାର, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଉ, ଅନୁଗାମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉ ବା ପ୍ରଶଂସକ ବୋଲି କୁହାଯାଉ, ସେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦର ପ୍ରଶଂସକ ଥିଲେ। ଏବଂ ସିଆଡ଼କୁ ଯେତେବେଳେ ବି ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଯାବତୀୟ ଆବଶ୍ୟକତା ସେ ବୁଝୁଥିଲେ। ତ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସେ ଜମିଦାରୀ ବା ସେଇ ଜମିଦାରଙ୍କର ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। କାମ ସାରି ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟିକେଟ କରିଦିଆ ହେଇଛି, ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ। ବିବେକାନନ୍ଦ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ ଏସବୁ ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କିଛି ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପଇସା କଣ ଦରକାର ନାଇଁ, ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ଦୂର ବାଟ ଯିବେ, ରାସ୍ତା ଟିକେ ଦୂର ଥିଲା, ଦୂର ବାଟ ଯିବେ, ରାସ୍ତାରେ ହୁଏତ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ପଡିପାରେ, ଆପଣ ପଇସା ରଖନ୍ତୁ। ନାଇଁ ମୋର ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ। ନାଇଁ କଣ କେମିତି କରିବେ? ନାଇଁ ମୋ କଥା ଭଗବାନ ବୁଝିବେ। ଏ କଥା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜୀବନରୁ ବି ପଢିବା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବି ଆମେ ମର୍ମର ସହିତ ବିଚାର କରିବା। ମୋ କଥା ଭଗବାନ ବୁଝିବେ। ପୁରା ତ ମନା କରିଦେଲେ ତ ସବୁ ନାରାଜ, ସେ ଖାଲି ଟିକେଟଟା ସେ ନେଲେ। ଏଟା ହେଲା ଅର୍ଥକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତୁଲ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରେ। ଟିକେଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଟିକେଟଟା ତ ଲାଗିବ ନା। ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ସେଇଟା ବି ଭଗବାନ ବୁଝି ଦିଅନ୍ତି, ସାଧନ କେମିତି ହେବ କଣ ହେବ ବୁଝି ଦିଅନ୍ତି ଭଗବାନ। ତ ସେ ଟିକେଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଉଟା ଦେଲା, ସେ ଟିକେଟଟା କାଟିଥିଲା, ଟିକେଟଟାକୁ ରଖିଲେ, ପଇସାଟି ଫେରେଇ ଦେଲେ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଟ୍ରେନକୁ ଚଢିଲେ, ତାଙ୍କ ସିଟରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଜଣେ ବୋଧେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣେ ଆସିକିରି ସେଠ ବୋଲି ଥିଲା ବୋଧେ ସେ କାହାଣୀରେ, ଜଣେ ସେଠ ଆସିକିରି ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲଗେଜ ବହୁତ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠୁ ବଡ ଲଗେଜ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟର ଲଗେଜ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପାଣିର ଗୋଟିଏ ବୋଟଲ ଆଜିକାଲି ଏମିତି ଲିଟ୍ରିଆ ବଡ ଜାର ବୋଧେ ମାଠିଆ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପାଣିର ରହିଛି। ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଦେଖୁଛି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମୁଁ ତାକୁ ମଜାରେ ହ୍ୟୁମିଲିଟି ବେଗ ବୋଲି କହେ, ଯୋଉ ଝୁଲାମୁଣାଟି ଥାଏ, ନାଇଁ ତାକୁ ହ୍ୟୁମିଲିଟି ବେଗ ବୋଲି ମୁଁ କହେ। ଯେମିତି ଲେଡିଜ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ନାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭେନିଟି ବେଗ ଥାଏ, ତାକୁ ମୁଁ ହ୍ୟୁମିଲିଟି ବେଗ କହେ। ଯୋଉ ଝୁଲାମୁଣାଟିକୁ, ସେଟା ହେଲା ବିନମ୍ରତାର ବେଗ। ମାନେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଝୁଲେଇ ଦେଲେ କାନ୍ଧରେ, କେମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିନମ୍ର ହୋଇଯାଏ। ମୁଁ ମୋର ଭାବ କଥା କହୁଛି। ଆପେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ମୁଣାଟା ଝୁଲେଇ ଦେଲେ ବିନମ୍ର ହେଇଯିବାକୁ ପଡେ, ସରଳ ହେଇଯିବାକୁ ପଡେ। ତ ସେ ଝୁଲାମୁଣାଟି କେବଳ ଅଛି। ତାପରେ ଏ ଲୋକ ପଚାରୁଛି, ଆମର ଯେମିତି ଅଭ୍ୟାସ ଯେ ଆପଣ କୁଆଡେ ଯିବେ, ତ ବିବେକାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଡେଷ୍ଟିନେସନଟା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୂର। ସେ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଇବା ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ, ଏତେ ଦୂର ଯିବେ। ବିବେକାନନ୍ଦ ତାକୁ ସମାନ କଥା କହିଲେ, ମୋ କଥା ମୋ ଭଗବାନ ବୁଝିବେ। ତାପରେ ସେ ମନେ ମନେ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି, ଏବଂ ଆମେ ଆଜିକାଲି ଏଇ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଗୁଡାକ ଏମାନେ ସବୁ ଭଣ୍ଡ, କିଛି ନାହିଁ। ତ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ବାଟ ଯିବେ କି? କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ସାମଗ୍ରୀ ନାହିଁ, ଖାଇବା ସାମଗ୍ରୀ ନାହିଁ, ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଏ ଲୋକଟି ଯିବ କେମିତି? ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଅପଲକ ନୟନରେ ଝରକାକୁ ଦେଖି ପ୍ରକୃତିର ଦୃଶ୍ୟ, ଝରକା ଦେଇ ପ୍ରକୃତିର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗାଡି ଚାଲୁଛି, ମଝିରେ ମଝିରେ ସେ ଲୋକଟି ତାର ଖାଦ୍ୟ କାଢୁଛି, ଖାଉଛି, ପାଣି ପିଉଛି। ବିବେକାନନ୍ଦକୁ ଟିକେ କଣେଇ କଣେଇକିରି ଦେଖୁଛି, କିଛି ରିଆକ୍ସନ ନାହିଁ। ଶେଷରେ 5-6 ଘଣ୍ଟା ଗାଡି ଚାଲିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେସନରେ ଆସି, ଛୋଟ ଷ୍ଟେସନରେ ଗାଡି ରହିଲା, ସେଠାରେ ବୋଧେ କ୍ରସିଂ ଥିଲା ନା କଣ ଥିଲା। ବେଶ ସମୟ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ସେଠି ଅଟକିବ, ଅଧା ଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ। ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରାୟ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ମାନେ 2-2.5 ଖଣ୍ଡେ ସମୟ ଧରନ୍ତୁ। ଏବଂ ସେଇ ଷ୍ଟେସନରେ ଗୋଟିଏ
झंकालिया गछ अच्छी से झंकालिया गछ गोटे पार्श्व जाकर विवेकानंद बसिले से लोकटे भी जाकर बसिला पुणी तार से काढ़िला तार मसणा पट्टी पकईकर खाद्य काढ़ा खाऊची विवेकानंद गोटे कणई देखुची विवेकानंद किसी ना निर्विकार अच्छा लोकटी खाऊ ना पानी पीऊ ना कि करना केमती ता भर गोटे सेमती चली प्रश्न स्वामी विवेकानंद बसी यही समय देखागला जड़े लोक गोटे टिफिन कैरियर धरी धाइला भली वेगरे आसुची आसिक स्वामी विवेकानंद पाखरे पहुंची जाउची एवं स्वामी विवेकानंद को कहूची आज्ञा आपणक पई मु खाद्य आनी देछि जहा किछि संभव होई पारला खूब कम समय भितर दया करी आपण यहा को खाई दियंतु स्वामी विवेकानंद आश्चर्य ही देखुचंती लोकटी को चिन्हि नांती से कहउचंती हुए तो तुम अन्य का को खोजतु से कहउछि नाही आपण ही से लोक जहा को खाद्य देबा पई मते निर्देश हिछि नहीं तुमको किए निर्देश देला तुमको किए निर्देश देला से कहउचंती नाही आपणक जोगु ही मु जे आज श्री रामचंद्र को केवल दर्शन कली ताहा नुह तांकर स्पर्श भी लाभ करिछि घटना की तापर से कहउछि आज्ञा ए स्टेशन रो बाहर मोर गोटे छोटिया होटल टे बेसी जन गहली अंचल नुह इटा तेणु 12टा बेल को प्राय मोर काम सब सरी जाए सब सारी कर मुझे विश्राम करने को जाऊा बेले टे आखिटा लगी जाइए स्वप्न देखला भली मते लगिला जे श्री रामचंद्र आसी मते कहते मोर जड़े भक्त आसी पहुंचब से गछ तले थी ताकू तू से खाई ना ताकू तू किसी खाद्य नहीं देबू मु स्वप्न बोली टिके पुणी कड़ लौटे देली तापरे मते पादरे टिके एमती गोईठा मारला सचेतन कला भाई आम एमती कर उठेला भाई सचेतन कला भाई से कहीदेले उठ तापाई किसी खाद्य तो सब तो सरी जाइला किसी जहाँ किसी थिला मु बहुत शीघ्र प्रस्तुत करी आनी आपण खातु आपण जोगु ही मु भगवान दर्शन भी पाइली एवं स्पर्श भी पाइली कहानी टेठारे सरी जाउची एवं से लोकटी बल बल करी से सेठ बल बल करी देखुछि केवल स्वामी विवेकानंद आड़ को आ से घटनाटी तो कहवा बाहुल्य है आमको अर्थ को त्याग करिवार नहीं अर्थ जदि आसुछि ता उपाय आसुछि ताहले आसु आमे किंतु से अर्थ रे आसक्त होई जीवा नहीं आसक्त होई जीवा नहीं एटा आउटे दिग ये दुईटा संपूर्ण भिन्न कथा अर्थ को त्याग करिवा नहीं किंतु अर्थ रे आसक्त भी होई नथिबा यार आमे ताको कॉम्प्लीमेंटरी बोली कहबा यार परिपूरक भाव रे 7 नंबर पैराग्राफ अछि ताको मध्ये आमे जो अध्ययन करबा सेते बेले ताको आउट व्यापक भाव रे आमे भल भाव रे बुझी परिबा तो प्रथम है साधक पूर्ण जोगर साधक अर्थ आसक्ति मुक्त होगा पड़ो किंतु सन्यासी तुल्य अर्थ को त्याग कर बैलेंस जड़े कथा कर प्रकृत में माँ शिवलिंग जोग साधना को आम जब देखिए सबु क्षेत्र में कथा कहते उदाहरण दि जापर आम जेहेतु अध्ययन करुचु कथा को बुझापी आम से माँ शिवलिंग ग्रंथर ही उदाहरण नहीं पार जमी आम खाद्य निद्रा जोटा आम मौलिक आवश्यकता बोली आम कहूँ खाद्य निद्रा नहीं खाद्य प्रसंग में कौन कहते श्री अरविंद गोटे जगह श्रीमद भगवद गीता को कोट कर लिखिले श्रीमद भगवद गीतार गोटे कथा अच्छी युक्त हार विहार से युक्त चिष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योग भवति दुःखः योग साधना सकल दुःखर अपहरण करिनिए दुःखः दुःख हरण जे करे दुःखः दुःख हरणकारी योग होचे दुःख हरणकारी किंतु योग साधना केमिति करा जीवो युक्त हार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त माने जगह संयमता आहार रे संयमता निद्रा रे संयमता कर्म रे संयमता युक्त हार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य शोइबारे संयमता
निद्रित अवस्था संयमता जाग्रत अवस्था संयमता यही एक संयमता एवं समता भाव रक्षा करी यदि योग साधना करा जाए ताहले योग दुख हरणकारी हो जाए ताको श्रीअरविंद कहते आउ टे ये कहते कौन सी भी योग पूर्ण योग तो कौन सी हिसाब से नुह कौन सी भी योग विदाउट सफिशिएंट फूड एंड सफिशिएंट स्लीप बोली कहते यथेष्ट खाद्य एवं यथेष्ट निद्रा बिना योग साधना करने संभव हो पारिबो नहीं खाइबार अच्छी शोबार अच्छी किंतु वर्तमान कथा है ये जगह में देखिए खाइबार तो हमको फ्री छाड़ीदे खाइब शोब बोली कि सेमिति फ्री नुह जेतिकी आवश्यक सेतिकी खाइब वर्तमान एटा को गोटे मनुष्य जानिबा दरकार एटा गोटे भिन्न प्रसंग आम कौन अन्य कार्यक्रम रे अन्य प्लाटफर्म रे करि परिबा कथा मो थरे बरगढ़ जिला पाठचक्र संगठन जो विभिन्न कार्यक्रम गुड़ाक हुए करी 5टी विषय पर खाद्य निद्रा व्यायाम ब्रह्मचर्य कर्म 5टी कथा जोटा आम दैनंदिन जीवन में साधना निहाती पड़े कौ समय रे खाइब केते परिमाण रे खाइब ताहा बड़ कथा कौन खाइब बड़ कथा नुह आम जो आमिष निरामिष केते कथा अत्यधिक तेल मसला नहेब सेटा अलगा कथा किंतु कौ समय रे खाइब केते परिमाण रे खाइब यार एक कथा रही शोइब कौ समय रे शोइब कौ समय रे उठिब तार आवश्यकता रही आउ टे सहज बुझा आम जो नीरवता बोली कहू माँ कहते नीरवता कौन यथार्थ नीरवता कौन यथार्थ नीरवता हेउची जो जगार जेतिकी आवश्यक सेतिकी कहब गोटे शब्द भी अधिक उच्चारण करिबो नहीं यथार्थ नीरवता नीरवता कहले पाटी बंद करवा नुह आवश्यक जो जगह अच्छे कथा कहब किंतु अनावश्यक भाव में गोटे शब्द भी कहब नहीं साधना रे एई दिगटी केते कष्टकर आपण माने चिंता कर देखते आम समस्ते मत मिसई करी मु सब गोटे कथा कहे कहला लोक जे शुणा लोक ठारू साधना रे उच्च जगार अच्छी सिद्ध एक व्यक्ति यही धारणा प्रथम आम मुक्त हो दरकार मु हुए बा आउ किए हुंतु बा आउ को संथ पुरुष हुंतु से जहा कहउछंती जे से सबु से अटंती एटा हुए तो संभव हो न पारे किए 80% होई पारे किए 90% होई पारे किए 10% होइतिबो किए 20% होइतिबो किंतु संपूर्ण भाव में केही नुहंती जहा कहंती ताहा केही नुहंती किछि ना किछि दोष त्रुटि समस्त भीतर अछि तेणु साधना क्षेत्र में एभली एक संयमता आचरण करवा जोटा माँ एठारे कहले बा प्रभु कहले अर्थ त्याग करि नथिबो अर्थ प्रति आसक्त नथिबो एई गोटे स्टेट एई गोटे स्थिति रे मनुष्य आसी पहुंचीबो भाभी देखंतु आमु तो दृढ़ता सहित कहि पारिबी आमे समस्ते त्याग तो करि नाहु आसक्ति मध्य आमर जाई नाही अर्थ प्रति अर्थ आसक्ति रही अर्थ हानि हेले आमे भांगी पड़ू किंतु पूर्ण जोगर साधक अर्थ प्रति आसक्त हेब नहीं अर्थ को त्याग करिबा नहीं तार जो स्वाभाविक प्रवाह रही से स्वाभाविक प्रवाह को से स्वीकार करिब अर्थात मु जदि कर्मचारी एटा मुखा बेले दृष्टांत देवाई कहूँ बुझा को सहज हे बोलिकी यहाँ को आम श्रीअरविंद गोटे सिद्धांत बोली हुए तो विचार करवा नहीं मु जदि कर्मचारी मो पाई स्वाभाविक अर्थ प्रवाह कौन मो से उद्दिष्ट कर्म पाई श्रम समय विनियोग करी जेतिकी मो पाई दरमा सेतिकी ग्रहण करी अधिक किछि काहाठू आशा करी नहीं मु जदि व्यवसाय जो आदर्श रही किणा दामरू केते दाम रे बिकिले आवश्यक परिमाण लाभ से तार गोटे स्टैंडर्ड अच्छी तार स्टैंडर्ड अच्छी जे गोटे मैन्युफैक्चर्ड आ गोटे जिनसर मैन्युफैक्चरिंग
मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट केते होची ताको मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन केते हैला तापरे ताको केते प्रॉफिट रखी करी जणे तेणु सब देखिबे आपण गोटे मैक्सिमम रिटेल से मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी तो यथेष्ट मैक्सिमम से दे दूसरी यथेष्ट मैक्सिमम जद्वारा 10% 15% 20% 25% पर्यंत भी छाट करा जाई पारुची छूट करा जाई पारुची 50% पर्यंत छूट करा जाई पारुची तेणु से मैक्सिमम रिटेल प्राइस फिक्स कला बेल को ही तामने दुर्नीति आरंभ हो जाउची 5 टंकिया जिनस को मैक्सिमम रिटेल प्राइस 50 टंका आपण करिवे माने 50 टंका रो अधिक जने बिक्री पारिबो नाही जदि आमे एमिति करिवे ताले एठुई दुर्नीति बा अत्यधिक लाभर अर्थ आसक्ति युक्त अत्यधिक लाभर गोटे मनोभाव जना पड़ जाउची जदिओ सेठी हो नै 50 टंका मैक्सिमम रिटेल प्राइस 50 लेखा हेतिले 20 कि 25 टंका रे बिक्री होची जिंसटा आपण देखिबे आमे तो समस्त बाजार करूछु ना मार्केट जाउछु ना विभिन्न द्रव्य किनुछु सब बेले आपण देखिबे मैक्सिमम रिटेल प्राइस केते अछि जोटा ता माने ये जिंस गुडा को कंपनी रो जिंस नुह बाकी लोकल प्रोडक्ट गुडा को जिंस गुडा को देखिबे जे आपण को जति कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस लेखा हितिबो से मैक्सिमम रिटेल प्राइस रो आधार भी कम दाम रे आपण दुकानी ठारू किनि पारुछि तार अर्थ दुकानी सिथि लाभ रखुछि ना रखुने दुकानी तो भी लाभ रहउछि किंतु कथा हैला जे आमे ए जो लाभखर मनोवृत्ति रही छी या होछि आसक्ति सब क्षेत्र रे एटा अछि सब क्षेत्र रे आमे जहा को झाड़ बुहा श्रमिक बोली कहूछु सेमाने भी ए आसक्ति रो मुक्त होई नहंती आपण देखिबे श्रम जति श्रम पाई सेमाने समय निर्दिष्ट करथिबे सेति समय करंती नाही एवं जेते बेले दाबी करंती श्रम पाई सेते बेले सेमाने अधिक करि थांती ठीक अछि सेति में आमे जेतु मापी परिबाने केते श्रम को केते पैसा देबा आमे सी सेक्शन टी को बाद दे देबा श्रमिक सेक्शन टी को जो माने शारीरिक श्रम करछंती तांकर सेक्शन टी को बाद कर देबा बाकी जो क्षेत्र में आमे देखिबा कर्मचारी हुअंतु व्यवसायी हुअंतु ए सबु क्षेत्र रे दुर्नीति ही दुर्नीति रही छी जहा अर्थ आसक्ति जोगु ही सृष्टि होई छी तेणु साधक को अर्थ आसक्ति मुक्त होगा स्वाभाविक ढंग से जहाँ आसूची व्यवसायी टे तार व्यवसाय जो आदर्श रही से आदर्श व्यवसाय करिबो मुझे सरकारी कर्मचारी टे एवं शिरोबिंदु को जीवन रे ग्रहण करिछि ताहले मोर जेतिकी दरमा सेतिकी ऊपर मोर हक अछि वर्तमान ताठु पुणी कौन करिबे केते कौन करिबे सेटा अलग कथा किंतु वर्तमान मोर हक गला सेतिकी ऊपर ताठु यदि अधिक मु कोनोसी ना कोनोसी असाधु उपाय रे अर्जन करूछि सेटा हला मोर आसक्ति जोगु धन प्रति आसक्ति जोगु तो एई कथा को बुझिबा को हेबो आसक्ति रो मुक्त किंतु त्याग भी करि नथिबा सेते बेले भागवत कर्म निमित्त अर्थजय करिवार अधिकार अधिक क्षमता तुमे लाभ करिवो सेई भली एक सच्चोट व्यक्ति जीवन बंचुथवा व्यक्ति तार जो गोटे व्यक्तित्व गठन हेबो तार गोटे जो प्रभाव बलय रहिबो सच्चोटतार साधुतार नैष्ठिकतार से प्रभाव बल रे जेते बेले से अन्य मान को किछि चाहिबो मान का पय अर्थ सेते बेले तार से व्यक्तित्व अन्य मान को प्रभावित करिवो एवं से माने अकुंठ चित्तरे दान करिवे आमे जहाँ को निर्मल भावमूर्ति बोली कहूँ राजनीति रे तो निर्मल भावमूर्ति गोटे भिन्न शब्द किंतु प्रकृत गोटे निर्मल भावमूर्ति व्यक्तिर एमिति एक व्यक्तित्व निर्मल व्यक्तित्व रही थिबा दरकार जहाँ अन्य मान को प्रभावित करि पारुथिबो जो कथा में बारंबार आलोचना करूछु एटा मुख्यतः पूनम चंद साहंक पई लेखा जाइथिला किछिटा हुए तो अस्पष्टता पूनम चंद साहंक भितर थिला बोली से कहउचंती मते किए देबो आपण गोटे मते ऑथराइजेशन दियंतु एवं शिवबिंदु गोटे ऑथराइजेशन भी देथिले जे ई लोक होछि मोर लोक एवं आश्रम काम पई अर्थ संग्रह करूछि बोली तापरे भी से आमे गत अधिवेशन रे पढिथिले केमिति तार दुरुपयोग से करूथिले आवश्यक ठार अधिक निज पई खर्च कर दोथिले केते बेले काहा को धार दे दोथिले तो केते बेले काहा को धार आनी आसुथिले एटा हला मनोभाव कोनसी ना कोनसी जगह आसक्ति रही जाउछि तेणु चेतावनी स्वरूप रे हो एवं आम पई एक
परामर्श भाव हो आमको कहगला जे आमको अर्थ आसक्ति मुक्त होगा पड़ो किंतु अर्थ को सन्यासी तुल्य त्याग मध्य करने को पड़ो ना ताहले जाई आमे मां निमित्त बा भागवत कर्म निमित्त अर्थ जय करिवार अधिक क्षमता लाभ करि परिबा आम भीतर गोटे क्षमता सृष्टि होई जिवो आम भीतर गोटे व्यक्तित्व सृष्टि होई जिवो आमे आम व्यक्तिगत जीवन में कथा देखिछु जो व्यक्ति आम पाखक आसुची पैसा आमे आमे भी जोटा पैसा मागिबा पई कोनोसी काम पई आमे जानि जाउछु जो माने ये गणेश पूजा विश्वकर्मा पूजा अनंत पूजा सब पूजा बेल को आसुचंती तो आमे भी सेमती कैजुअली 5-10 कर दूछु आउ जणी कोनोसी सत्पुरुष जे आसुची आमे भाबिबाकू पडुची चिंता करिबाकू पडुची जे नै यार प्रकृति रे उद्देश्य कोन एवं महद उद्देश्य रही तेणु यहाँ दान करिवार बा यहाँ एथिरे किछि कंट्रीब्यूट करिवार यथार्थता रही तापरे आमे देखिबा द्वितीय वाक्य जोटा द्वितीय वाक्य आमे हुए तो पढ़ी करी आमे विशेष जाई परिबा नै किंतु बहुत चमत्कार कथा गुडा को एठारे प्रभु कहउछन जोटा आमे आलोचना करि छालिनी चतुर्थ पैराग्राफ ए चतुर्थ अध्याय षष्ठ पैराग्राफ द्वितीय वाक्य प्रथम शब्द मनर समता इक्वालिटी ऑफ माइंड ताकू सप्तम पैराग्राफ रे वर्णना करा जाउची तो आमे ई पैराग्राफ रो भी प्रथम धाड़ी जोटा आसक्त भी होई नथिबो एवं त्याग भी करि नथिबो एवं सप्तम रे कहउचंती अर्थ आसिले उत्फुल्लित होई जाउ नथिबो चाली गले निहुइत होई जाउ नथिबो भांगी पडु नथिबो सेटा हला समता मनर समता इक्वालिटी ऑफ माइंड अर्थ को नहीं पर्टिकुलरली किंतु इक्वालिटी ऑफ माइंड को आमे ई अध्याय रो जदी काढी आनिबा एवं गोटे स्वतंत्र मंत्र भाव रे नेबा स्वतंत्र प्रेरणा भाव रे नेबा जे इक्वालिटी ऑफ माइंड इन एवरी फील्ड इज रिक्वायर्ड प्रत्येक क्षेत्र रे मनर समता रो आवश्यकता रही जहां भगवत गीता रे कहा गला दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह सिद्धा सिद्धो समम कृत्वा समत्वम योग उच्यते दुख रे भांगी पड़िबार नहीं सुख रे उत्फुल्लित होई जिबार नहीं सिद्धि हो बा असिद्धि हो समान भाव रे समतार दृष्टि नहीं जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होई पारे छिड़ा होई पारे सही भली समतार मनोभाव को कहा जाउची योग योग साधनार गोटे महामंत्र महाकोश होउची कोन समता इक्वानिमिटी बोली कह इक्वालिटी रो इक्वानिमिटी समान भाव एकदम अविचलित दुख रे अविचलित सुख रे अविचलित शांत स्थिर भाव यह को कहा जाए समता अर्थ क्षेत्र रे मध्य कथा प्रभु कहले इक्वालिटी ऑफ माइंड मनटा सब शांत एवं स्थिर थिबा दरकार मनर समता रहिथिबा दरकार द्वितीय कौन सी दाबी न रखिबा नो डिमांड तो हमरो दाबी थाए एतिकी पाई एतिकी अर्थ तो निश्चित भाव मिलवा दरकार बा आउ कौन सी व्यक्ति ठारो से जेमिति जेहेतु एतिकी से एतिकी देवा दरकार तो कौन सी दाबी रखी अर्थ पाई कौन सी दाबी रहिबो नाही इटा से समान कथा भली हमको लागिबो कर्मण्यवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन कर्म रे हमर अधिकार अछि किंतु कर्मर फल रे नुह दाबी शून्य
एवं तुमर जहा किछि अछि जहा किछि तमे पाओ एटा पूनम चंद साहब को डायरेक्ट इंडिकेट कला भली लागु छी किंतु वर्तमान हम समस्त देखिबे जहा किछि अछि जहा किछि पाओ वर्तमान मो पाखरे कोन अछि जहा किछि अछि 100% तार अर्थ 100% ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत जहा किछि अछि जहा किछि मान जहा किछि आ कोनोसी किछि को बात दिया जाय परिबा नाही एवं जहा किछि पाओ श्रम करी हो लोकंकटु संग्रह करी हो से सबु एवं तुमर सकल उपार्जन शक्ति मनर समता कौन सी दाबी न रखिबा तुमर जहा किछि अछि जहा किछि तुमे पाओ 3 तुमर सकल उपार्जन शक्ति यह को हम व्यापक भाव आलोचना करछि उपार्जन शक्ति मु जो अर्थ उपार्जन करूछि से अर्थ उपार्जन जो शक्ति माध्यम रे मु करूछि मु जने लेक्चरर अध्यापक वर्तमान उपार्जन अध्यापना करी मासक किछि दरमा पाउछि सेटा हला मोर उपार्जन वर्तमान से उपार्जन पई शक्ति कोन शक्ति होछि ज्ञान अर्थ उपार्जन पई जो शक्ति रो मु विनियोग करूछि सेटा हला ज्ञान तापर समय शारीरिक सेटा को नै मूल शक्ति को हम देखि ज्ञान अछि निर्दिष्ट विषय रे मु स्नातकोत्तर डिग्री हासिल करिछि एवं निर्वाचन माने जोटा को सिलेक्शन जहाँ भी हला ता द्वारा मनोनीत होईछि नियुक्त होईछि ज्ञान थिला बोली ज्ञान नथिले होई पारि नथांती एवं ताकू ने उपार्जन करूछि तेणु से शक्तिटी होछि भगवानंकर कृषकटीए ता पाखरे जमी अछि जमी रे से श्रम करूछि दैनिक 8 घंटा 9 घंटा परिश्रम करूछि झाड़ बहुछि तार जो शारीरिक बल से शारीरिक बल ताकू किए दैछंती ने भगवान दैछंती ज्ञान भगवान दैछंती बल भगवान दैछंती एवं क्षेत्र मध्य भगवान दैछंती मु पई कर्म क्षेत्र दैछंती सरकार को माध्यम रे विभिन्न विद्यालय अनुष्ठान खोली मते कर्म क्षेत्र जोगे दैछंती जमी चाष जमी जोगे दे कृषक को जोगे दैछंती खनिज द्रव्य दे विभिन्न स्मिथ कारीगर मान को किए लुहा तो कला तो किए तंबा को निकरी काम कला तो किए काठ को निकरी काम कला बढ़ई हैला किए माटी को निकरी काम कला कुम्हार पाखरे शक्ति कोन तार श्रम करिवो से शारीरिक बल मध्य होछि भगवानंकर जो शारीरिक बल निकरी से काम करिवो माटी हांडी करिवो कुम्हार माटी तैयारी करिछि कि कुम्हार हांडी तैयारी करूछि ठीक माठिया तैयारी करूछि ठीक बढ़ई खट पलंक आउ अन्य काठ उपकरण आसबाब पत्र तैयारी करूछि ठीक कमार लोहा द्रव्य तैयारी करूछि ठीक किंतु लोहा किए तैयारी करिछि काठ किए तैयारी करिछि जमी किए तैयारी करिछि जहा को निकरी मु गर्व करूछि मु मो जमी रे चाष कली हरे तो जमी रे तो पाख को जमी आसिला कोठु हु हैज गिवन दी अथॉरिटी आमे तांकु केते रॉयल्टी देइछु मु केबे विचार करिछि सरकार को गत अधिवेशन रे कहितरी पुणी थरे दोहरौछि सरकार को इनकम टैक्स दउछि किंतु मते जे ज्ञान देइछंती जहां को कृपा बल रे ज्ञान रो विनियोग करी मु अर्थ उपार्जन करूछि से मते केबे रॉयल्टी मागिछंती जे मु दत्त ज्ञान रु मो प्रदत्त ज्ञान रु तू एति की दरमा पाउछु अते मते एति की फेरेई दे मते एति की देवार कथा भगवान तो कहू नांती बढ़ई को जे भगवान कहू नांती मूर्ति कारीगर को जे भगवान कहू नांती मु तते काठ जोगई देली से काठ रे तू मूर्ति तैयारी कलु से मूर्ति बिक्री करी तू रोजगार कलु
तेणु मोर जो अच्छी जी रॉ मटेरियल्स देला हमको रॉ मटेरियल्स के देछि ने वुड कॉर्पोरेशन काठ निगम जी अच्छी काठ निगम मते काठ देछि अरे काठ निगम पाखकु काठ कोठु आसिला नहीं पानी बिक्री कर दउछु हमें केमिति पानी बिक्री कर दउछु डीप बोरवेल टे खोली देछु पंप रे पानी उत्तोलन करछु नहीं पानीटा मोर माटी तले पानी किए रखी देथिला जाको तू डीप बोर करी खोली करी आनी करी बिक्री करछु एवं जदि भी बिक्री करलो ठीक अछि सेटा तो से पानीटा तो कार गोटे संपत्ति ना जो पानी को मु उत्तोलित कली बोरवेल रो से पानीटा काहा गोटे संपत्ति ना नुह ता पई मु कोन करिछि ताकू मु केते देछि इलेक्ट्रिक वाला को इलेक्ट्रिक बिल देछि आउ कोन काहा को देछि से पानी रो जदि किछि उपार्जन करूछि सरकार को इनकम टैक्स देछि किनु मूल द्रव्य से पानी टी जे देछि जहा को नै मु व्यवसाय करूछि जो पानी को नै करी से पानी रो जे दाता से काठ रो जे दाता से जमी रो जे दाता से वायु रो जे दाता ता कथा मु केबे विचार करिछि कि पागला ही जीव मनुष्य तेणु ये शिवबिंदु हमको स्पष्ट कहीदेले प्रथमे तो किसी ने एटा कमे तुमर सकल उपार्जन शक्ति जो सब उपाय आम उपार्जन करुचु से सब हूँ भागवती शक्ति भगवान तेणु से सब को भागवती शक्ति पाखरे तांको कर्म निमित्त पूर्ण निवेदन करिबा यह हेउची मुक्तिर लक्षण कोठु मुक्ति अर्थ आसक्ति मुक्त हेबार लक्षण हूँ एटा जो दिन एतिक आम कर से दिन आम अर्थ आसक्ति मुक्त हो आम भावुँ पैसाटी मोर झाड़ बुहा परिश्रम मु करिछि दिमाग मु खटेइछि एवं उपार्जन करुछि अहंग्रगर अहंकार एक मोटा बलय भितर एक थिक बाउंड्री भितर एक घन बहल बलय भितर मनुष्य जीवन बंचुछि अर्थ को लेकर हो जीवन को लेकर हो जहाँ को लेकर हो तेणु अर्थ आसक्ति मुक्त हेबार लक्षण कौन नहीं तुम जहा कि अच्छी उपार्जन उपार्जन जो क्षमता से सब हूँ भागवत भगवान तेणु भागवती शक्ति निकट से सब समर्पण आवश्यकता रही मोटू कि छड़े नहीं जीवेनि मुझे कहि प्रभु जो जो जमी मु चाष करुच्ची से जमी तमर तमर जी प्राप्य मुठार से नहीं जाओ जदि मुझे कहबी ताहले मते विशेष किसी करने को पड़ो ना चमत्कार एक प्रसंग मन पड़ी टी समय हो गला से प्रसंग कहीकि आम सारे आज 2 मिनिट भितर सरीज एवं सत घटना माने यहाँ कौन कहानी नुह किंवदंती नुह सुरेंद्रनाथ जोहर जो माने आश्रम सहित जोड़ी अच्छा से माने निश्चित भाव से व्यक्ति को जानी सुरेंद्रनाथ जोहर दिल्ली आश्रम जे प्रतिष्ठाता सुरेंद्रनाथ जोहर जहाँ को माँ फकीर बोली ना देते आश्रम रे से गोटे कथा कहते से गोटे बही अच्छी से माई मदर बोली बही से जीवन में घटी सत कथा गुड़ी को से उल्लेख कर माँ शिवबिंद को जाना पूर्वर यहाँ गोटे कथा पूर्वर कथा से कहते गोटे व्यवसाय करने को चाहूली गोटे पार्टनरशिप व्यवसाय करी मत लगे गोटे निर्दिष्ट व्यवसाय करी गोटे व्यवसाय करी सेपरेटली व्यवसाय करी एवं से व्यवसाय मत किसी पैसा दरकार था से 100 टंका ना के लिखिं मुझे से केत कहानी पढ़ी पूरा एक्जाक्टा कहीदेवी जेहेतु चतुर्थ अध्याय आमको आउ 2-3टा अधिवेशन लगे खाली आज तार ये दे तो कहते मत दरकार 100 टंका बोधी मत 100 टंका दरकार था कि मो पाखे एत पैसा आसो कौटू मुझे प्रार्थना कली माँ शिवबिंद को से जानी ना जे हे भगवान मत जो 100 टंका मिल जाता व्यवसाय आरंभ करने ताहले मु तो आपन को 10 टंका इटा तो आम करिछु ना मते भगवान कोटिए टंकार लटरी फिटई दे मु तत्व पई लक्ष्य टंकार व्यवस्था करि देबी भगवान भी केड़े बेवकूफ लक्ष्य टंकार लोभरे मते कोटिए टंका देबो याठु बोली करे बेवकूफ केही ना आमे भी भगवान को सही लोभ देखौछु मते कोटिए टंका दे मु तते लक्ष्य टंका देबी
एवं भगवान बेचारा से लक्ष टंका पाइब बोली करी कौनसी ना कौनसी उपाय मत कोटी टंका दे दूछ तो ये भी कहते भगवान मत जो 100 टंका केमी मिल जाता ताहले तमर कमिशन भाव में आपको 10 टंका देवी बट मेक इट एन अरेंजमेंट मो पाखे अरेंजमेंट कर दियंती 100 टंका मिल जाता तापर से कहते परदिन मु मॉर्निंग वॉक रे जाउची एवं नॉर्मली सबुदिन जो रास्ता रे जाए से रास्ता रे न जाए गोटे अन्य रास्ता रे गली से दिन जो जगह रे बेसी लोकंकर जनसमागम नाही किछि बाट गला पर देखिली गोटे पर्स वॉलेट मनी पर्स बोली आम जहाँ गोटे वॉलेट पड़ी एवं मु गली देखिली कहीं ना लोक बाक कहीं नहांती एवं बोधे से पूर्वदिन पड़े पड़े से कथा डिटेल से लिखु ना गोटे मनी पर्स पड़ी मु गली मनी पर्स उठेली एवं खोली देखिली सेठारे 90 टंका अच्छी भगवान कहले भगवान आपण तो बहुत चलाक आगरू आपण कमिशन काटी करी नहीं गले आपण 10 टंका तो कथा हूँ सेमती मुझे यही भाव नहीं जीवन बंची पारिबी जे भगवान मते जो जहाँ मु उपार्जन करुच्ची से उपार्जन आपणक जोगु ही संभव होइची तेणु यही अर्थरु आपणकर जहाँ दरकार ताहा आपण नहीं जानतु से तांकर रास्ता करी नहीं जीवे किंतु मु सेतिकी करि पारु नाही कुंठा करि पारुछि बोली करी मते भितरे से आसक्ति भितरे बुड़ी रहबा को पडुछि मु भगवान को एतिकी खोली करी कहि पारु नाही जे भगवान मते एतिकी दरमा देई छंती गोटे मासर श्रम परे एई दरमारो आपणकर केते हक प्लीज टेक इट अवे फ्रॉम मी सरकार को तो मु इनकम टैक्स रा पूरा हिसाब दउछि सरकार को भी फांकुछि किछि जाय आसे नै किंतु दरमा पाइला लोके फांकी पारबो नाही आमे जो माने दरमा पाउछु आमे फांकी पारिबो नाही सरकार को भी गोटे पैसा भी फांकी पारिबो नाही बाकी चा समोसा बिकला बेले से माने फांकी दे पारिबे जदि हमटु 5 गुण 10 गुण रु अधिक उपार्जन करते से माने फांकी देबे तो आमे तो सरकार को फांकुछु भगवान को फांकुछु जो दिन मनीष निष्ठार सहित अनाबिल भाव प्रार्थना करि पारिबो भगवान को जे भगवान यही जो अर्थ उपार्जन कली यही अर्थ उपार्जन पाई जहाँ सब दरकार थिला श्रम ज्ञान एवं रॉ मटेरियल से सबूर दाता होछु तू तेणु यही उपार्जन रे तोर मध्य गोटे भाग अच्छी तोर जति भाग दया करी मोठू सेतिकी तू कोनसी उपाय रे नहीं जा देखिबे आमे निश्चिंत हो जाई पारिबे एटा गोटे नुआ थ्योरी आमे करि पारली हुए तो आमे मुक्त हो जिवे हमको लागिबो नाही जे मो भगवान को फांकी दोछि बोली करी तेणु चमत्कार कथा चतुर्थ अध्याय रही अर्थ को नहीं करी आमे समस्त मनोनिवेश करिवे पूर्ण योग साधनार साधक मानक पई गोटे आह्वान होछि केते निष्ठापर होई पारिबे केते निजे निजको आत्म विश्लेषण करी साधना पथरे आगे जिवे सही आशा भरोसा मां सेविंद आम पाखे रखिछंती कोनोसी कटकणा नहीं कोनोसी रोग नहीं कोनोसी टोक नहीं किंतु केते निष्ठापर भाव में आम कथाटी को ग्रहण करुछु एवं आचरण करुछु ताहा निर्भर करे तेणु आसंतु मां श्रीविंदଙ୍କ प्रति निष्ठापर होई आचरण करिबा पई संकल्पबद्ध हेबा केते कले न कले बड़ कथा न किंतु संकल्पबद्ध करिबा हां मो पूर्ण जोग पई जने योग्य साधक को हेबा को चाहे मां मते कृपा करंतु मोर मन प्राण शरीर चेतना को प्रस्तुत करंतु मां निश्चित भाव में हमको साहाय्य करिवे मां श्रीविंदଙ୍କ निकट रे विनम्र कृतज्ञता तथा आज कार्यक्रम रे श्रद्धार सहित आंतरिकतार सहित एते राति रे भी जोड़ी हिथिबा सम्मानस्पद समस्त भाई को मो विनम्र प्रणाम और धन्यवाद ज्ञापन करुछि वंदे मातरम वर्तमान पाठचक्रटी को आम शेष करने को जाऊे सतरे समय टी आज अधिक हो जाइए आमर अपा भाई मान भोक भी लगे तेणु मु यूजुअली मो भाव जमी टिके समय नहीं कि भाई कथाटा को क्विकली टिके समअप करे आज करूना किंतु गोटे कथा ता लोभ संवरण जमा कर पारुनी आज चमत्कार भाषा टी भाई व्यवहार कले डिवाइन ब्रांड रो आम जीवन टी हेबा दरकार एडे सहज कथाटे जे आमर पूरा घोषी होगी गोटे थर रे मन रही जे आमे तो ब्रांडेड जिनस प्रति लालायित एते खाली लालायित नुह आमे जदि ब्रांडेड यूज करूछु आउ किए करूनी ताकू मध्य
ନିଚା ଦେଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଅଛି। ମାଙ୍କର କରୁଣାରୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ସେମିତି ନଥିବ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର। ତ ତେବେ ଆମେ ସେଇ ଡିଭାଇନ ବ୍ରାଣ୍ଡର କେମିତି ହବା? ସେଇ ବ୍ରାଣ୍ଡର ହବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଲିଟିଟି ଅହଂମୁକ୍ତ ରଖିବାକୁ ହବ ନିଜକୁ, ଏବଂ ସତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ସତ୍ୟରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ମା ଯେମିତି ଶିଖେଇଲେ, ମନ୍ତ୍ରଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ସୁପ୍ରିମ ଲର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଇଟର୍ନାଲ ଟ୍ରୁଥ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଓବେ ଦି ଏଲୋନ୍। ପରମୋଚ୍ଚ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ବୋଲୁଛେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ସତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇପାରୁଥିବା ଆମେ, ଏବଂ ଆମ ଅନ୍ତରଟି ପ୍ରେମରେ ଭରପୁର ହେଇଥିବ। ତୃତୀୟ କଥା, ଆମେ ଯଦି ସେଇ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଖୁବ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଡାକିବା କଥା ଯେ ଆମେ ସତରେ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁ। ଏମିତି ଗୋଟେ କଣ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜୀବନ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ? ତେଣୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା, ଜୀବନକୁ ଆମ ମନକୁ ଶଙ୍କା ମୁକ୍ତ କରିବା, ସଂକୋଚନ ମୁକ୍ତ କରିବା। କେଡ଼େ ସଂକୁଚିତ ହେଇକି ମଣିଷଟି ବଞ୍ଚେ ପ୍ରକୃତରେ, ଖାଲି ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜ ଘର, ନିଜ ଟଙ୍କା, ନିଜ ପଦପଦବୀ, ନିଜ ପିଲା, ନିଜ ଗାଡି, ନିଜର ତ ସବୁ। ଆଉ ସେ ନିଜକୁ ଭାରି ସଂକୁଚିତ କରିଦଉ ଆମେ। ସେଥିରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ନିଜକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବା। ତେବେ ଏତିକି ହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ଡିଭାଇନ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ପାରିବା। ଏବଂ ଆଜିର ଏହି ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ସହିତ ଆଜି ଆମେ ନିଦ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଯିବା। ଆଉ ଚାପ୍ଟର ବିଷୟରେ ଚମତ୍କାର କଥା ସବୁ ରହିଛି, ମୁଁ ସିଓର ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଅନ୍ତରସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ମୁଁ ଜମା ନେବିନି। ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଉ ଏତେ ଡେରିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦିନ ଯାକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ତ ଅନଲାଇନରେ ବିଭିନ୍ନ ପାଠଚକ୍ର ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ 4:30ରେ ଭାଇଙ୍କର ଥିଲା, ସେଥିରେ ବି ଭାରି ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ ଗୁଡିଏ ଆସିଥିଲା। ଆଜି ସମୟ ଥିଲେ ମୁଁ ପଦେ ଅଧେ କହିଥାନ୍ତି, କହୁନି। ଆଉ ସେଇ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ସମାନ ଜୋଶରେ, ସତେ ଯେମିତି ସକାଳ 5ଟାରେ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମାନ ଜୋଶ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ପାଠଚକ୍ରଟିକୁ କରୁଛନ୍ତି। ମା ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସେଇ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ନିରୋଗ ରଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ସୁଯୋଗଟି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ନେବା। ଭାଇଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିଷ୍ଠା ପାଇଁ। ରତ୍ନପ୍ରଭାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମାଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ ସହ ପାଠଚକ୍ରକୁ ସମାପନ କରିବେ।